So we are back with a new portion that is not a new chapter, but many of you have complained that you are not understanding the portion of numericals for physics, that motion chapter. The motion chapter contains three types of numericals. Three types. The first one is dependent on distance, displacement. The first type. The second type is dependent on speed, velocity, or this average speed type questions. The third one is based on graphs. The numericals will be based on graphs. And sorry, there are four types. And fourth one on equations of motion. So I am going to give an example of all the three types one by one. See it very clearly and you have to go through the question very nicely, because without studying the question you cannot find the answer of it. Okay. So the first type of question I am giving. A man runs. See clearly. A man runs. One round of a circular field of diameter 70 meter, while B runs half round of a circular field of diameter same 70 meter. Find distance and displacement of A and B both. So I have got two persons. The first one is A, who runs one complete round, and second one is B, who runs only half round. So let me draw the diagram. This is the case of A, who runs a complete circle, who starts from here and ends here. Okay, the diameter is, the radius here is 35. Okay, because the diameter is 35, the radius will be, diameter is 70, the radius will be 35. And I have the case of B. B only runs half of the distance. Correct? Now, what will be the distance here? Distance er mane ki hoy? Distance means the total length covered. कैसे भी जाए, उड़ के जाए, तैर के जाए, जहां से भी जाए, total length कितना कवर किया? सर total length यहां से शुरू किया, ये पूरा यहाँ पे खत्म किया. That means a circumference, that is 2 pi r, 2 into 22 by 7 into 35. Why 35? Diameter is 70, therefore radius is 35. So on solving, I am getting here 110 meter. So this is my distance. ये आधा क्या? Let's see the distance here. ये तो आधा गया, तो it will be 2 pi r by 2. सिर्फ आधा ही गया because he did not complete the full round. So इसका कितना होगा? I will get here 2 into 22 by 7 into 35 whole divided by 2. So this 2 and 2 will cut and this 5 will cut. I will get an answer here. Sorry. Here will be 220. My mistake, here will be 220. And here will be 110. So I have got the distance of both A and B. सही है? Now I have to find the displacement. What is the formula of displacement? Sir, displacement is the shortest distance. सबसे कम distance. जहां से शुरू किए थे और जहां पे खत्म कर रहे हैं. सर ये भाई साहब यहां से शुरू किए और यहीं पे खत्म किए थे कंप्लीट राउंड.
तो जहां से शुरू किए वहीं पे खत्म किए। सो स्टार्ट और अंत के बीच में गैप कितना है? सर कोई तो गैप ही नहीं है, क्योंकि हम जहां से शुरू किए थे वहीं पे खत्म हो गए। सो माई डिस्प्लेसमेंट इज 0 मीटर। ऐसा भी डिस्प्लेसमेंट होता है 0, क्योंकि जहां से शुरू किया था वहीं पे खत्म कर दिया, डिस्प्लेसमेंट 0। बट थिंक द कंडीशन ऑफ द बी ने यहां से शुरू किया और यहां पे खत्म किया। व्हाट विल बी द डिस्प्लेसमेंट देन? तो उसका डिस्प्लेसमेंट दिस वन, दिस इज द, यहां से शुरू किया यहां पे खत्म किया, वो घूम के गया ऐसा, डजंट मैटर। हमने बोला कैसे भी घूम के डजंट मैटर, मेरा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज दिस मच। सो व्हाट इज दिस डिस्टेंस? दिस इज द डायमीटर, और डायमीटर कितना दिया हुआ है? 70। सो हियर माय डिस्प्लेसमेंट विल बी 70 meter. So this is how my distance and displacement type numericals are calculated. दोनों हम कैलकुलेट कर सकते हैं। जस्ट यू हैव टू नोटिस दैट डिस्टेंस बोला गया है तो टोटल लेंथ यू विल टेक विदाउट कंसिडरिंग कि कैसे गया, किस डायरेक्शन से गया, उड़ के गया, नीचे से गया, डजंट मैटर। बट इफ यू आर आस्क्ड डिस्प्लेसमेंट, देन यू हैव टू कैलकुलेट द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, कहां से शुरू किए, कहां पे खत्म किए। द पाथ विच इज टेकन इज नॉट नेसेसरी, कहां से शुरू किए, कहां पे खत्म किए, दिस इज नेसेसरी। ठीक है ना? नेक्स्ट ऑन एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी टाइप क्वेश्चंस। सपोज आई एम टेकिंग द एग्जांपल ऑफ द डाउट बॉय, दैट इज प्रियांशु, मिस्टर प्रियांशु goes from home to school at suppose 30 meter per second speed, but while returning he comes at 20 मीटर पर सेकेंड। हाँ है ना, स्कूल से छुट्टी मिलने वाला स्पीड ऑटोमेटिक बढ़ जाता है। सो जाते वक्त था स्पीड 30 मीटर पर सेकेंड, आते वक्त था स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड। फाइंड हिज एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड कैसे निकालेंगे? सर एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ एवरेज स्पीड? एवरेज स्पीड फॉर्मूला इज टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। सर यहां तो हमको डिस्टेंस भी नहीं मालूम, टाइम भी नहीं मालूम, खाली स्पीड देके छोड़ दिया, तो कैसे निकालेंगे? आई विल टेक ए एग्जांपल हियर कि ये है उसका घर, दिस इज द होम एंड दिस इज द स्कूल। द डिस्टेंस बिटवीन होम एंड स्कूल इज सपोज x meters. I don't know कितना है, but x meter. Okay. So case 1, when he is going from home to school, and the next when he comes from school to home, यहां डिस्टेंस अगर x है तो यहां भी डिस्टेंस कत হবে the same, because the distance does not changes. डिस्टेंस तो दोनों केस में सेम रह जा रहा है। तो होम टू स्कूल डिस्टेंस अगर x है तो स्कूल से होम भी डिस्टेंस x ही होगा। नाउ आई नो ऑफ अ फॉर्मूला दैट टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय स्पीड। तो आई विल अप्लाई द सेम फॉर्मूला हियर। यहां टाइम कितना हो जाएगा? टाइम हो जाएगा x बाय 30, बिकॉज द स्पीड हियर वाज 30। और यहां टाइम कितना हो जाएगा? टाइम विल बी x बाय 20, बिकॉज टाइम यहाँ 20 दिया हुआ है। सो आई हैव गॉट 2 डिस्टेंसेस एंड 2 टाइम्स, देयरफॉर आई कैन इजीली कैलकुलेट, देयरफॉर द टोटल डिस्टेंस कितना होगा एंड टोटल टाइम कितना होगा? द टोटल डिस्टेंस हियर विल बी x plus x 2x, and total time will be x by 30 plus x by 20, that is equals to 5x by 60, that is equals to x by 12. So I have got both the values. Now I will calculate.
देयरफॉर एवरेज स्पीड कितना होगा, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, दैट इज इक्वल टू 2x बाय x बाय 12. तो ये 12 तो यहां चला जाएगा. आई विल गेट 2x इंटू 12 बाई x. x कट गया. माई आंसर इज 24 मीटर. दिस इज हाउ एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी हैव टू कैलकुलेट. एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी सबसे टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम निकालना पड़ेगा. And to get the total distance, you have to find distance separately. You have to find time separately. अगर एक साथ स्पीड में दिया है, you will apply this formula to get time and distance separately. दोनों को ऐड करना है, एवरेज स्पीड निकालना. करेक्ट. So this is how my average speed is calculated. Now I will give you an example of how to do the graph type of question. Two types of graph: dt graph and vt graph. Distance time and velocity time. You have to go for both. But the most critical is the vt graph, velocity time. यहाँ दो चीज निकालना पड़ता है. एक्सेलरेशन भी निकालना पड़ता है, डिस्टेंस भी निकालना पड़ता है. So I will give you an example of vt graph. Okay, suppose this is a graph given and you are given certain points. The points are, the first point is A, the second point is B, this point is C and this point is D. Suppose 4 points are given. The पहला question पूछा गया, the first question, which region shows uniform acceleration and how much. तो क्या कहेंगे, हाउ टू फाइंड एक्सेलरेशन बता दें. एक्सेलरेशन इज कैलकुलेटेड बाय द फॉर्मूला डिफरेंस ऑफ y by difference of x. This is the formula of acceleration. How to find the acceleration then? See, I told you कि इस तरह का ग्राफ में if there is a increasing slope, this is acceleration. If there is a decreasing slope, this is retardation. Means यहाँ पे स्पीड बढ़ रहा है, यहाँ पे स्पीड घट रहा है. तो अब बताओ, इन दोनों को देख के क्या लग रहा है कि एक्सेलरेशन कहां से होगा. दिस इज द प्लेस ऑफ एक्सेलरेशन. ये प्लेस है एक्सेलरेशन का. मींस माय एक्सेलरेशन टेक्स प्लेस फ्रॉम ए टू बी. मींस माय रीजन ऑफ एक्सेलरेशन इज ए टू बी. अब ए टू बी में अगर हमको एक्सेलरेशन निकालना है, व्हाट आई हैव टू फाइंड? आई हैव टू फाइंड द डिफरेंस ऑफ y बाय डिफरेंस ऑफ x. अब बताओ, a से लेके b में y का डिफरेंस क्या है? y तरफ देखो. I started from 40 and ended at 70. तो डिफरेंस क्या होगा? ऊपर से नीचे का माइनस करो. 70 माइनस 40 कितना होता है? हम a से b में गए, हाँ, तो b में जाने के बाद फाइनल हो गया 70 और शुरू किए थे a से 40. तो डिफरेंस हो गया 70 माइनस 40 बाय डिफरेंस ऑफ x. हमको a मींस a का देखो x क्या है? a का x है 0 और b का x क्या है 2. मतलब a से b जाने में हमको 2 सेकंड का टाइम लगा. 2 माइनस 0. समझ में आया क्या किए? हमने कैलकुलेट किया कि भाई a
एक्सेलरेशन क्या है. So this type of graph shows acceleration, while this type of graph shows retardation. तो this is my path of acceleration A से B. शुरू किए थे A पे, खत्म किए B पे. तो B पे कितना था मेरा y 70, A पे कितना था y 40. तो दोनों का डिफरेंस कितना हो गया 70 - 40. B का x कितना था 2 और A का x कितना था 0. तो दोनों का डिफरेंस कितना होगा 2 - 0. तो 7 सॉल्व करने पे कितना आया 30/2, दैट इज इक्वल टू 15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया. ठीक है. नेक्स्ट अगर तुमसे पूछा जाए फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन यूनिफॉर्म मोशन, नाउ टेल मी फॉर अ VT ग्राफ यूनिफॉर्म मोशन कब होता है? फॉर अ VT ग्राफ यूनिफॉर्म मोशन होता है जब एक पैरेलल लाइन है, लाइक दिस इज यूनिफॉर्म मोशन. तो ऐसा ग्राफ हमको कहां पे मिला? ऐसा ग्राफ हमको मिला B2C. दिस इज द पाथ ऑफ यूनिफॉर्म मोशन, मीन्स B2C इज द पाथ ऑफ माई यूनिफॉर्म मोशन. अब पूछना है सर यू हैव टू फाइंड द डिस्टेंस. डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला क्या था? डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला था एरिया ऑफ ग्राफ. सो अब तुम बताओ ये B2C कैसा ग्राफ दिख रहा है? B2C सर एक रेक्टेंगल दिख रहा है. B2C इज अ रेक्टेंगल. रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ. इसका फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ. नाउ सी लेंथ और ब्रेथ क्या क्या मिलेगा? This is the length. This total is the length. That is 0 to 70 is the length. And what is the breadth? शुरू किए थे 2 से, खत्म किए पे 8 पे. The breadth is 2 2 2. That is 8. 2 2 2. That is 8. You have seen in coordinate geometry the distance between each part, each box. ये 2 है, 2 से 4 2. ये भी 2, ये भी 2. The breadth is 6 and the length is 70. So I am getting here area as 70 into 6. That is 420 meter. So this is how I can calculate the questions from the graph. ग्राफ में करने के लिए हमको either VT ग्राफ में I will be asked either acceleration or distance. और यही अगर DT ग्राफ में होता, for DT ग्राफ में सिर्फ एक ही चीज खोजता है, that is velocity. और velocity निकालने में यही फॉर्मूला होता है difference in y by difference in x. वेलोसिटी निकालने का सिर्फ DT ग्राफ में सिर्फ वेलोसिटी निकलता है, और VT ग्राफ में मींस वेलोसिटी एंड टाइम ग्राफ में दो चीज निकलता है. यू कैन आइदर फाइंड एक्सेलरेशन और यू कैन फाइंड डिस्टेंस. एक्सेलरेशन इज फाइंड बाय दैट फॉर्मूला, डिस्टेंस इज फाइंड बाय दिस फॉर्मूला. करेक्ट. सो दिस इज अवर ग्राफ्स क्वेश्चन में भी. फिर पहले तो ये डिटरमाइन करना है कि तुमको ग्राफ कौन सा दिया गया, VT या DT. कैसे जानेंगे? अगर वेलोसिटी और टाइम दिया है, वेलोसिटी स्पीड मीटर पर सेकेंड, तो VT ग्राफ है. और अगर डिस्टेंस दिया हुआ है मीटर, किलोमीटर, सेंटीमीटर, तो वो DT ग्राफ है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ है. करेक्ट. नाउ वी आर मूविंग ऑन टू द लास्ट क्वेश्चन, दैट लास्ट टॉपिक, दैट इज इक्वेशंस ऑफ मोशन. मूविंग एट 90 किलोमीटर पर आवर, ओके, stops after moving a distance of 200 meters. Find number 1 time taken to stop, number 2 retardation produced. So this is my question. कैसे करें? ये सवाल करने के पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आई मस्ट नो व्हाट आर द थ्री इक्वेशन ऑफ मोशन. क्या क्या है? पहला है v इज इक्वल टू u प्लस at. दूसरा क्या है? s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर. तीसरा क्या है? v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as.
ठीक है, these are 3 फॉर्मूले। सो जब भी इस तरह का क्वेश्चन मिले, द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग यू हैव टू राइट द 5 क्वांटिटीज। क्या क्या वो 5 क्वांटिटीज? यू हैव टू राइट U, V, A, T, S। ये 5 चीज लिख लोगे पहले, सबसे पहले ये 5 चीज लिखना। आई एम रिपीटिंग वंस अगेन, जब भी इस तरह का क्वेश्चन मिले इक्वेशंस ऑफ मोशन के ऊपर, ये 5 चीज पहले लिख लो, ठीक है। यू मतलब क्या? इनिशियल वेलोसिटी, कितने स्पीड से चल रहा था। सर कितने स्पीड चल रहा था ट्रेन? क्वेश्चन पढ़ो, द ट्रेन वाज मूविंग एट 90 किलोमीटर पर आवर, मतलब ये था उसका इनिशियल वेलोसिटी। तो लिखेंगे 90 किलोमीटर पर आवर, पर से 90 नहीं हो। क्यों? I told you that the velocity must be taken in मीटर पर सेकेंड। ये तो किलोमीटर पर आवर में है, मीटर पर सेकेंड में चेंज करो। हाउ? I can change किलोमीटर पर आवर टू मीटर पर सेकेंड by multiplying with 5/18। उल्टा करना है तो 18/5। So I will multiply 90 into 5/18। कितना आंसर मिल गया? 25 मीटर पर सेकेंड। चलो একটা কাজ হলো। सेकेंड वन, स्टॉप्स। स्टॉप्स माने रुक गया, चल रहा था और चलते रुक गया। जब रुक गया तो उसका स्पीड कितना हो? 0। जब रुक गया तो स्पीड 0। सो व्हाट इज द फाइनल वेलोसिटी? फाइनल वेलोसिटी 0। सो आई एम गेटिंग द फाइनल वेलोसिटी इज 0 मीटर पर सेकेंड। इनिशियल वेलोसिटी मतलब 25 मीटर पर सेकेंड, फाइनल वेलोसिटी मिल गया 0 मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? टाइम टेकन इन रिटार्डेशन। टाइम टेकन मींस टाइम हमको नहीं मालूम, टाइम इज क्वेश्चन। व्हाट इज रिटार्डेशन? रिटार्डेशन मींस नेगेटिव एक्सेलरेशन, मींस यू हैव टू फाइंड एक्सेलरेशन। रिटार्डेशन का मतलब ही होता है एक्सेलरेशन, मींस एक्सेलरेशन में निकालना है। एक्सेलरेशन में क्वेश्चन मार्क दे दो, ए और टी क्वेश्चन मार्क हो गया। तो क्या मिल गया? एस। एस क्या दिया हुआ? व्हाट इज एस? एस मतलब स्पीड ना, एस मतलब डिस्प्लेसमेंट। कहीं डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है? जी सर दिया हुआ है। इट स्टॉप आफ्टर मूविंग अ डिस्टेंस ऑफ 200 मीटर, मींस माय डिस्प्लेसमेंट इज 200 मीटर। तो हमको 3 वैल्यूज मिलता है यहां से। आई एम गेटिंग U, आई एम गेटिंग V, आई एम गेटिंग S। निकालना क्या है? A निकालना है, T निकालना है। कैन यू टेक द एग्जाम्पल ऑफ एनी 3 जिससे हमको A और T निकल जाए? सर देखिए ये फॉर्मूला देखिए। If you apply this formula, देखो सब कुछ दिया हुआ है। The first part, I am doing v square equal to u square plus 2as। देखो v दिया हुआ है, u दिया हुआ है, s दिया हुआ है, खाली ये a निकालना है। देखो सब आ जाएगा। करेक्ट? तो चलो बैठाना शुरू करो। What is v square? v square will be 0 square। What is u square? 25 square plus 2 into a into 200। I am getting 625 minus इसको minus 625 equals to 400a। So therefore a will be minus 625 by 400 meter per second square। चलो हमको a मिल गया। I have got what is my acceleration। सही है। नाउ हमको t भी निकालना है। सर t किस फॉर्मूला से निकले? अगेन देखो इनमें से कौन सा फॉर्मूला अप्लाई कर सकोगे? सर ये अप्लाई कर देते हैं, v is equals to u plus at। I know v is equals to u plus at। चलो यहाँ पे v दिया हुआ है, u दिया हुआ है, a भी तुमने निकालनी है, सिर्फ t निकालने से काम हो जाएगा। ठीक है, चलो वैल्यू पुट करो। v का वैल्यू 0, u का वैल्यू 25 प्लस a का वैल्यू कितना निकला? माइनस 625 बाई 400। माइनस भी लिखना है into t। So therefore if I go on calculating t, what I will get? T will be equals to 400 into 25 by 625। इसको सॉल्व कर लो, जो तो मेरे में that is my seconds। समझ में आया? Means जब भी you are getting this type of question, the first and foremost thing जो दिमाग में रखना है, you have to find this u, v, a, t, x। ये पांचों मिल गया, then you can apply this 5 to टेक द फॉर्मूला ऑफ एनी 3। तीनों में से जो तुमको फॉर्मूला लगे, जो यहां बैठ रहा है, हमने इसी को क्यों लिया? सर व्हाई डिडंट आई टुक दिस फॉर्मूला? क्योंकि यहां पे a और t दोनों ही अननोन था, सो ये नहीं ले सके। हमको ऐसा लेना था जिसमें ये अप्लाई करने पे a मिल गया, ये अप्लाई करने पे t मिल गया। ओके,
सो दिस इज हाउ यू हैव टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ मोशन। पहले जैसे ही क्वेश्चन पढ़ो, पहले ये पांचों लिख लो, ये पांचों लिख के फिर अप्लाई करो, द क्वेश्चंस विल बिकम वेरी इजी। ओके, सो दिस इज हाउ वी हैव टू गो थ्रू द न्यूमेरिकल्स। अब अपने से न्यूमेरिकल्स बनाना शुरू करो। जिस न्यूमेरिकल फंसोगे देन एंड देयर हमको फोटो क्लिक करके भेजो, आई शैल सेंड यू द आंसर एट दैट टाइम इटसेल्फ। थैंक यू।